بلیٹن کا آغاز کریں۔ جنوبی وزیرستان کے علاقے انگور اڈا میں افغان طالبان کی جانب سے اشتعال انگیزی کے واقعے کے بعد پاک فوج نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے متعدد پوسٹیں تباہ کر دی ہیں اور سیکورٹی ذرائع کے مطابق فتنہ الخوارج کی دراندازی کی کوشش کو ناکام بنا دیا گیا، اور دراندازی میں ناکامی کے بعد افغان طالبان نے بوکھلاہٹ کا شکار ہو کر بلا اشتعال فائرنگ شروع کر دی، سول آبادی کو نشانہ بنایا۔ فائرنگ کے نتیجے میں 2 خواتین سمیت 3 شہری بھی زخمی ہوئے، جنہیں فوری طور پر طبی امداد کے لیے وانا اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پاک فوج نے بھرپور جوابی کارروائی کرتے ہوئے دشمن کی کئی چوکیوں کو نشانہ بنایا، جس کے بعد صورتحال پر قابو پا لیا گیا ہے۔ مؤثر کارروائیوں کے بعد دشمن کو پسپائی اختیار کرنا پڑی، جبکہ علاقے میں کشیدگی برقرار ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے جنوبی وزیرستان میں خبارجیوں کی دراندازی کی کوشش ناکام بنانے پر پاک فوج کو خراج تحسین پیش کیا۔ کہا پاک فوج نے بروقت کارروائی کر کے خبارجیوں کے مذموم عزائم کو خاک میں امریکہ کے ساتھ جاری کشیدگی کے دوران ایران نے آبِ ہرمز کھولنے اور جنگ کے خاتمے کے لیے نئی تجویز پیش کر دی ہے۔ امریکی حکام اور ذرائع کے مطابق اس تجویز میں جوہری مذاکرات کو بعد کے مرحلے تک مؤخر کرنے کی بات کی گئی ہے، جبکہ دونوں ممالک کے درمیان سفارتی تعاطل بدستور برقرار ہے۔ ذرائع کے مطابق ٹرمپ آج وائٹ ہاؤس کے سچویشن روم میں اعلیٰ سطحی اجلاس کی صدارت کریں گے، جس میں قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی ٹیم آئندہ حکمت عملی پر غور کرے گی۔ یہ تجویز پاکستانی ثالثوں کے ذریعے امریکہ تک پہنچائی گئی ہے، جس میں پہلے آبِ ہرمز کے بحران اور امریکی ناکہ بندی کے خاتمے پر توجہ دینے کی بات کی گئی ہے، جبکہ جوہری مذاکرات بعد میں شروع کرنے کی تجویز شامل ہے۔ وائٹ ہاؤس نے اس تجویز کی وصولی کی تصدیق کر دی ہے۔ یہ واضح نہیں امریکہ اس پر غور کرنے کے لیے تیار ہے یا نہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر پاکستانی قیادت کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کا بہت احترام کرتا ہوں۔ پاکستان کے فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم بہت اچھے اور قابل احترام ہیں۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ ایران جنگ جلد ختم ہو جائے گی اور ہم فاتح ہوں گے۔ ایران بات کرنا چاہتا ہے تو وہ فون کر سکتا ہے، ہم یہ کام فون کے ذریعے کریں گے۔ ایران میں جن لوگوں سے ہم نمٹ رہے ہیں ان میں کچھ مناسب ہیں اور کچھ نہیں۔ امید ہے ایران دانش مندی کا مظاہرہ کرے گا۔ امریکی صدر نے یہ بھی کہا کہ ایران کا افزودہ یورینیم کا معاملہ مذاکرات کا حصہ ہے، ہم اسے حاصل کریں گے۔ چین سے زیادہ مایوس نہیں ہوں، تاہم وہ مزید مدد کر سکتا ہے۔ نیٹو کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ایران کے معاملے میں نیٹو ہمارے ساتھ نہیں تھا، جب جنگ ختم ہو گئی تو برطانیہ نے کہا کہ وہ جہاز بھیجے گا، یہ اچھا نہیں ہے۔ اسلام آباد کا دورہ انتہائی مفید رہا۔ دورہ اسلام آباد میں حکام کے ساتھ مثبت مشاورت ہوئی ہے۔ روس پہنچنے پر ایرانی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ ایران اور ماسکو کے درمیان علاقائی اور عالمی امور پر قریبی مشاورت جاری رکھنے کے مقصد سے روس آیا ہوں۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے آج ملاقات ہوگی۔ روسی صدر سے ملاقات میں جنگ کی پیش رفت اور موجودہ صورتحال کا جائزہ لینے کا اچھا موقع ہوگا۔ یقین ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان مشاورت اور ہم آہنگی خاص اہمیت کی حامل ہوگی۔ پاکستان اور عمان دوروں سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ دورہ اسلام آباد میں حکام نے ماضی کے واقعات اور ان مخصوص حالات کا جائزہ لیا جن کے تحت ایران امریکہ مذاکرات جاری رہ سکتے ہیں۔ ایران اور عمان آبِ ہرمز کے ساحلی ممالک ہیں، اس لیے باہمی مشاورت ناگزیر۔ پاکستان میں دہشت گردی اور بد امنی کے حوالے سے بھارت کے مبینہ کردار پر ایک بار پھر بحث چھڑ گئی، جہاں مختلف بیانات اور دعووں کے بعد معاملہ توجہ کا مرکز بن گیا۔ بھارتی صحافیوں نے پاکستان میں دہشت گرد حملوں میں بھارت کے ملوث ہونے کا واضح اشارہ دے دیا۔ بھارتی خفیہ ایجنسی را سے جڑے بھارتی صحافی آدتیہ راج نے انکشاف کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں دہشت گردی کے لیے ہماری پہچان کچھ بھی ہو سکتی ہے۔ دہلی کے لال قلعہ دھماکے کے محض 24 گھنٹے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں خود کش دھماکہ کس نے کرایا، سب سمجھ سکتے ہیں۔ اس سے قبل بھارتی ریٹائرڈ کرنل راجیش نے بھی پاکستان میں دہشت گردانہ کارروائیوں میں بھارت کے ملوث ہونے کا اعتراف کیا۔ ماہرین کے مطابق پاکستان میں حملوں سے لے کر کینیڈا اور امریکہ میں سکھ رہنماؤں کے قتل تک بھارت ایک دہشت گرد فیکٹری بن چکا ہے۔ پاکستان کی جانب سے بھی بارہا بھارت کی پاکستان میں دہشت گردی کے لیے سہولت کاری کے شواہد پیش کیے جا چکے ہیں۔ اب آپ کو بتائیں کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا ہے۔ شرح سود میں 1% اضافہ کر دیا گیا۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد کی زیر صدارت مانیٹری پالیسی کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ شرح سود 10.5% سے بڑھا کر 11.5% کر دی گئی ہے، جبکہ اعلامیے کے مطابق مانیٹری پالیسی کمیٹی نے مشرق وسطیٰ کی صورتحال کے باعث شرح سود میں تبدیلی کا فیصلہ کیا۔ عالمی منڈی میں تیل کی بڑھتی قیمت اور سپلائی چین معیشت پر اثر انداز ہوئی۔ پاکستان میں مہنگائی کا منظرنامہ بھی تبدیل ہوا۔
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कीमती पत्थरों के शोबे की तरक्की से मुतालिक अहम इजलास इस्लामाबाद में मुनक़िद हुआ, जिसमें इस शोबे को जदीद खतूत पर इस्तवार करने और बरामदात बढ़ाने के इम्कानात का तफसीली जायज़ा लिया गया। इजलास से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान कीमती पत्थरों के वसी कुदरती ज़खायर से मालामाल है और इस शोबे में बेहतरी लाकर बरामदात में नुमाया इजाफ़ा किया जा सकता है। उन्होंने हिदायत की कि कानकनी और प्रोसेसिंग के निज़ाम को बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक बनाया जाए और इस हवाले से जामे हिकमत अमली जल्द तैयार की जाए। ब्रीफिंग में बताया गया कि हुकूमत कीमती पत्थरों की कटाई, तराश, खराश और जेवरात साजी के मयार को बेहतर बनाने के लिए 3 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस कायम कर रही है। इन मराकज़ के लिए गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर में अराज़ी मुख्तस की जा चुकी है, जबकि इस्लामाबाद में एक और मरकज़ के क़याम पर काम जारी है। हुकाम के मुताबिक इन मराकज़ में जदीद तरबियत फराहम की जाएगी ताकि मकामी अफराद को आलमी मयार की महारत। चीन के सूबा हुनान के शहर चांगशा में पाकिस्तान और चीन के दरमियान 3 मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत की तकरीब हुई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने भी शिरकत की। तकरीब में मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग के लिए अहम मुआहदे तय पाए। पहला मुआहदा महकमे बल्दियात सिंध और लोशियन इन्वायरमेंटल टेक्नोलॉजी ग्रुप के दरमियान तय पाया, जिस पर सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन और चीनी कंपनी के चेयरमैन यो होई ने दस्तखत किए। इस मुआहदे के तहत समंदरी पानी को काबिल इस्तेमाल बनाने के मंसूबों पर मुश्तरका काम किया जाएगा ताकि पानी की फराहमी में इजाफा किया जा सके। तो दूसरा मुआहदा महकमे बल्दियात सिंध और लॉन्ग पेन हाई टेक इंफॉर्मेशन कंपनी के दरमियान ज़रई टेक्नोलॉजी के फ़रोग के लिए किया गया। तीसरी मुफाहमती याददाश्त चाय के शोबे से मुतालिक है, जो मस्के एंड फेमटी ट्रेडिंग कंपनी, हुनान टी ग्रुप और जियोलॉन्ग इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी हेनान के दरमियान तय पाई है। इन मुआहदों का मकसद चाय की सनत के फ़रोग, ज़रई तरक्की और पानी के मसाइल के हल के साथ साथ इक़्तिसादी, तिजारती और अवामी रवाबित को मज़ीद मुस्तहकम बनाना है। सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र सिंध भर में ड्रोन्स और क्वाडकॉप्टर्स की परवाज़ पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। वफाकी वज़ारत दाखिला की हिदायत पर हुकूमत सिंध ने 60 रोज़ के लिए सख्त इक़दामात नाफिज कर दिए हैं। इसी पर मज़ीद बात कर लेते अपने नुमाइंदे ज़ुहैब राजपूत से। जी ज़ुहैब, आगाह कीजिएगा, पाबंदी लगा दी गई है? जी बिल्कुल, सिंध में सिक्योरिटी सूरत हाल की पेश नज़र वफाकी वज़ीर दाखिला की हिदायत पर ड्रोन्स और क्वाडकॉप्टर्स की फ़ज़ाई परवाज़ पर फौरी और मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। सिंध हुकूमत ने 60 रोज़ के लिए पाबंदी नाफिज करते हुए वाज़ा किया है कि सिर्फ कानून नाफिज करने वाले इदारों को ड्रोन इस्तेमाल करने की इजाज़त होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक खिलाफ वर्जी पर दफ़ा 188 के तहत मुकदमा दर्ज होंगे, जबकि SHOs को सेक्शन 144 के तहत फौरी कार्रवाई का इख्तियार दिया गया है। जी ठीक है ज़ुहैब, अपडेट करने का शुक्रिया। तिजारती राहदारी में बड़ा ब्रेक थ्रू, पाकिस्तान ईरान तक रसाई का मरकजी गेटवे बन गया। वजारत तिजारत के ट्रांजिट ऑफ गुड्स ऑर्डर 2026 के तहत इलाकाई तिजारत में नई पेशरफ सामने आई है, जिसके मुताबिक अब दूसरे ममालिक का सामान पाकिस्तान के रास्ते बाआसानी ईरान मुंतकिल किया जा सकेगा। नए ऑर्डर के तहत गवादर, कराची और तफ्तान को ईरान तक तिजारती तरसील के लिए कलीदी और तरजीही रूट्स करार दिया गया है, जबकि नेशनल लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन के मुताबिक तकरीबन 3000 ईरानी ट्रांसशिपमेंट कंटेनर्स कराची और गवादर बंदरगाहों पर मुंतकिल किए जा चुके हैं, जिन्हें ज़मीनी राहदारी के जरिए ईरान रवाना किया जा रहा है। इस मकसद के लिए गब्द, रमदान और तफ्तान मीर जावा बॉर्डर क्रॉसिंग को मरकजी रास्तों के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। माहिरीन के मुताबिक ये पेशरफ पाकिस्तान को खित्ते में तेज़, महफूज और कम लागत तिजारती रास्ते के तौर पर नुमाया मकाम दिलाने में मदद देगी। बंदरगाही सरगर्मियों और मुआशी रवाबित में भी इजाफा मुतवक्किल। और कराची से रोजगार की गर्ज से बैरून मुल्क जाने वाले 11 से ज़ायद पाकिस्तानी सोमालिया के करीब बहरी कज़ाकों के कब्जे में चले गए, जहां मुसल्लह कज़ाकों ने ऑयल टैंकर पर हमला करके जहाज़ को हाईजैक कर लिया। ज़राए के मुताबिक जहाज़ पर मुख्तलिफ ममालिक के शहरी भी सवार हैं, जबकि कज़ाकों की जानिब से $70 लाख तावान का मुतालबा किया गया। मज़ीद तफसीलात ज़िशान मलिक की इस रिपोर्ट। कराची में GDC सेंटर पर मगवी फरात के अहले खाना अपने प्यारों की बाहिफाजत वापसी के लिए जमा हो गए। यहाँ रिकत अमेज मनाजर देखने में आए, किसी की आंखों में उम्मीद तो किसी के लबों पर दुआएं थी। मगवी की अहलिया ने बताया कि आखिरी बार 2 रोज कबल बात हुई थी, जिसमें इनके शोहर ने खदशात का इजहार किया था। कल मेरी बात हुई है तो वो बहुत ज्यादा रोने लगे कि हमें यरगमाल बना लिया है, हम पे हवाई फायरिंग की गई है, ये लोग हमें लेके जा रहे हैं, कह रहे हैं कि हम मार देंगे। मुझे नहीं लगता कि मैं अपने बच्चों से मैं मिल पाऊंगा कि नहीं मिल पाऊंगा। ये बच्चा अपने बाप से अभी तक नहीं मिला है। अमीन गए थे 9 दिसंबर को, ये बच्चा हुआ है 24 दिसंबर को। उन्होंने यही बोला कि इनका ख्याल रखना, मेरे अब्बा का इनका ख्याल रखना। हमारी सिर्फ यही अपील है कि हमारे जितने भी प्यार है उनको वापस जो है लाया जाए।
छोटे छोटे बच्चे हैं जो घर पे उनको खाना पीना भी नहीं खाया, 2-4 दिन से भूखे प्यासे पड़े हैं। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से भी अपील करते हैं कि वो इसमें कुछ साथी दिलचस्पी लें। कॉल आई थी, कल आई थी, 2 दिन के बाद कॉल आई थी, क्योंकि वो जब जाते हैं तो रात में सिंगल नहीं होते, प्रॉब्लम होती है सिंगल की, तो 2 दिन के बाद कॉल आई थी उनकी, तो उन्होंने यही बताया कि हम हाईजेक हो गए। अहले खाना के मुताबिक एक मगवी अपने 4 माह के बेटे को भी देख न सका। ऑडियो पैगाम में कराची के रिहायशी सैयद काशिफ ने बताया कि वो शदीद परेशानी में हैं। मुसल्लह अफराद ने यरगमाल बना रखा है और खाने पीने की एहतिया भी खत्म हो रही हैं। हम लोग यहाँ बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हम 11 पाकिस्तानी हैं, इंडोनेशियन हैं, इंडियन हैं, हम 17 टोटल आदमी हैं जहाज़ पे, और गवर्नमेंट हमारी जल्द से जल्द इधर रब्ता करे सोमालियन गवर्नमेंट से, और हमको यहाँ से छुड़वाए, खुदा के वास्ते हम पे रहम करें। हमारे बच्चे हैं हम लोगों के घरों पे, हमारी फैमिली हैं, प्लीज़ हेल्प करें हमारी गवर्नमेंट। अहले खाना ने हुकूमत पाकिस्तान से फौरी और मौसर इकदामात का मुतालबा करते हुए कहा है कि जब तक इनके प्यारे बहिफाजत वतन वापस नहीं आते, इनकी बेचैनी खत्म नहीं होगी। कैमरा टीम के हमरा ज़िशान मलिक, NTN न्यूज़, कराची। पख्तूनख्वा के ज़िला कुरम में तवील अरसे से गैर फ़ाल पारा चनार एयरपोर्ट को दोबारा फ़ाल कर दिया गया है। पाक फ़ौज, FWO और पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी की काविशों से एयरपोर्ट फ़ाल हुआ। पाक आर्मी एविएशन की जानिब से 26 अप्रैल को ऑपरेशनल लैंडिंग और टेक ऑफ ट्रायल्स किए गए। ज़राए का बताना है कि पाक आर्मी एविएशन ने रनवे की फ़ालियत और ऑपरेशनल तैयारियाँ जाँचने के लिए ट्रायल्स किए। पाक आर्मी एविएशन ने मजमूई तौर पर 6 कामयाब लैंडिंग और टेक ऑफ ट्रायल्स मुकम्मल किए। एयरपोर्ट रनवेज़ को पेशेवराना मयार और आला सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक करार दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज आवाम के लिए रोज़गार के मौक़े पैदा करने के लिए मुख्तलिफ मनसूबों पर काम कर रही हैं। पंजाब में अपना खेत अपना रोज़गार स्कीम शुरू की गई है, जिसके तहत बंजर ज़मीनों को काबिल काश्त बनाया जाएगा। लाहौर में वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इस प्रोग्राम के तहत तकरीबन 160 अरब रुपए मालियत की ज़मीन लीज़ पर दी जाएगी, जिससे 88,000 से ज़्यादा ख़ानदान मुस्तफ़ीद होंगे। उन्होंने कहा कि इस इक़दाम से न सिर्फ लोगों को रोज़गार मिलेगा बल्कि सूबे की मईशत को भी फ़ायदा पहुँचेगा। मौजूदा हुकूमत के दौर में पंजाब में तरक्याती कामों में तेज़ी आई है और गंदम की पैदावार भी मुकर्ररा हदफ से ज़्यादा रिकॉर्ड की गई है। और अब आपको बताएं कि कराची के चनेसर टाउन के इलाके मंजूर कॉलोनी में गुज़िश्ता 5 सालों से पानी की अदम दस्तयाबी के बायस मकीन शदीद मुश्किलात का शिकार हो गए। इलाका मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस गए, महंगे दामों पानी ख़रीदने पर मजबूर हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे राशिद अनवर वहाँ के रिहायशियों के साथ मौजूद हैं। जी राशिद, बताएगा क्या कहना है इलाका मकीनों का? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ चनेसर टाउन का इलाका मंजूर कॉलोनी, जहाँ पर गुज़िश्ता 5 सालों से पानी की अदम दस्तयाबी की वजह से यहाँ की आवाम जो शदीद मुश्किलात का शिकार है। इस वक्त यहाँ के कुछ रिहायशी हमारे साथ मौजूद है, मज़ीद तफसीलात जानते हैं उनसे। जी बताइएगा, आपके इलाके में कितने अरसे से पानी नहीं आ रहा और पानी ना आने की वजह क्या है? भाई 5 साल से पानी नहीं आ रहा है, और पानी आता है सिर्फ एक दफा हफ्ते में, वो भी एक दफा, जो रो रो के पानी 4-4 घंटे के बाद एक दफा खोलते हैं 1 घंटे के लिए, और फिर हम लोग पानी से बेजार हैं। हर तरीके की परेशानी पानी से होती है हमको। आधा घंटा पानी खोलते हैं, उसके बाद बंद कर देते हैं, उसके बाद पानी नहीं आता, पूरी रात इंतजार करते हैं पानी का, पानी आ जाए, फिर पानी नहीं आता, सिर्फ आधा घंटा खोलेंगे, वो भी इतवार के दिन बस। जी बिल्कुल, यहाँ के रिहायशियों को ये कहना है गुज़िश्ता 5 सालों से जो है यहाँ पर पानी नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से हमें शदीद मुश्किलात का सामना है। दूसरी तरफ देखा जाता है कि महंगाई का तनासब इतना ज्यादा हो चुका है कि घर का अखराजात करना बहुत मुश्किल है। अगर वो एक्स्ट्रा उन पर बोझ आ जाएगा अगर पानी खरीदेंगे, तो मुतल्लिक़ इदारों को चाहिए कि फिर फौर जो है ना यहाँ पर इस इलाके के लिए पानी मुहैया की जाए, ताकि यहाँ के अवाम सुकून का सांस ले सके। जी वफाकी वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत सेहत के निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए इक़दामात कर रही है। इस सिलसिले में आलमी शराकतदारों के साथ मिलकर काम जारी है। इस्लामाबाद में हेल्थ केयर का बुनियादी मकसद बीमारियों से बचाव और आवाम को सेहतमंद रखने के लिए एहतियाती तदबीर नागुज़ीर हैं। मुस्तफ़ा कमाल ने तेज़ी से बढ़ती आबादी पर काबू पाने की ज़रूरत पर ज़ोर देते हुए कहा कि आबादी में इजाफे से सेहत के निज़ाम पर दबाव बढ़ रहा है। लोगों को बीमारियों से बचाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है और इसके लिए आवाम में आगाही पैदा करना ज़रूरी है। शहरियों को सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी अपनाना होगा, जबकि मुतवाज़न खुराक और एहतियाती तदबीर बेहतर सेहत की ज़मानत है। और अब आपको मौसम का अहवाल बताएं। मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी की शदीद लहर बरकरार है, जिसके बायस शहरी बेहाल हो गए।
महकमे मौसमियात के मुताबिक सिब्बी में दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है। लाहौर, फैसलाबाद और दीगर शहरों में पारा 41 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया। कराची में दर्जा हरारत 37 डिग्री जबकि हैदराबाद में 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ है। महकमे मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद समेत कई शहरों में दर्जा हरारत मामूल से कहीं ज़्यादा रहने का इम्कान है। तो खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में भी गर्मी की शिद्दत बरकरार रहने की पेशगोई, जबकि पंजाब में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। सिंध के बालाई और वस्ती अजला में शदीद गर्मी जबकि दीगर इलाकों में गर्म और खुश्क मौसम मुतवक्के। महकमे मौसमियात ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने और गैर ज़रूरी तौर पर धूप में निकलने से गुरेज की हिदायत की है। शहर कायद में भी अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे को यकसर मुस्तरद कर दिया। शहरियों का कहना है कि आमदन वही है मगर अखराजात मुसलसल बढ़ रहे हैं। ऐसे में पेट्रोल की कीमतों में इजाफा महंगाई के तूफान को मजीद तेज़ कर देगा। आइए देखते हैं आरिफ हबीब की ये रिपोर्ट। वजारत तवानाई की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमतों में 24 रुपए 77 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया। इजाफे के बाद पेट्रोल की नई कीमत 393 रुपए 35 पैसे फी लीटर जबकि हाई स्पीड डीजल 380 रुपए 19 पैसे फी लीटर हो गया। कराची के शहरी कहते हैं चीजें महंगी हो रही हैं, तनख्वाहें वही हैं, हुकूमत को आवाम का ख्याल करना चाहिए। पहले ही गुजारा मुश्किल था, अब पेट्रोल इतना महंगा हो गया है कि मोटरसाइकिल चलाना भी मुश्किल लग रहा है। हुकूमत के इस फैसले के बाद महंगाई की नई लहर का खदशा जाहिर किया जा रहा है क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से ट्रांसपोर्ट समेत अशिया ज़रूरत की कीमतें भी मुतासिर होती हैं। सेक्रेटरी वर्क्स एंड सर्विसेज मोहम्मद नवाज ने सहवन में सैयद अब्दुल्ला शाह इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में जारी तरक्याती मंसूबों का जायजा लिया। इस मौके पर होने वाले इजलास में डायरेक्टर सास्पेंस डॉक्टर मोइनुद्दीन सिद्दीकी, प्लानिंग ऑफिसर हाफिज सादुल्लाह सोलंगी, चीफ इंजीनियरिंग प्रोविंशियल बिल्डिंग शेर मोहम्मद मैसर, चीफ इंजीनियरिंग हाईवेज अरशद भट्टो, एक्सन शहबाज शाह, असिस्टेंट कमिश्नर सहवन बाबर अली और मुख्तलिफ महकमों के अफसरान ने शिरकत की। इजलास के दौरान सेक्रेटरी वर्क्स ने मुख्तलिफ मनसूबों की रफ्तार, मयार और सहूलियात के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग ली। उन्होंने कहा कि सासमेंस की जानिब से फराहम की जाने वाली तिब्बी सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार करते हुए इदारों की कारकर्दगी को सराहा और कहा कि सर्विसेज काबिल तारीफ है। सेक्रेटरी वर्क्स ने मुतालिका अफसरान को हिदायत की है कि तरक्याती काम मुकर्रर वक्त के अंदर मुकम्मल किए जाएं और आवाम को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात की फराहमी में कोई कोताही ना बरती जाए। बड़े हमले की तैयारी, इजरायली फ़ौज का जनूबी लेबनान से शहरियों को इनखला का हुक्म। इजराइल ने जनूबी लेबनान के मुख्तलिफ इलाकों में जबरी इनखला के अहकामात जारी कर दिए। बफर जोन से बाहर वाक़े 7 कस्बों के रिहायशियों को इलाका छोड़ने का हुक्म दिया गया। इजरायली हुक्म के बाद लेबनानी शहरियों की बड़ी तादाद घर छोड़कर शुमाल की जानिब रवाना। लेबनान में जंग बंदी के बावजूद इजरायली फ़ौज की जानिब से कार्रवाइयाँ जारी हैं। सहूनी फ़ौज के हमलों में गुज़िश्ता एक रोज़ में 14 अफराद जाबहाक हुए हैं। लेबनान की मुज़ाहमती तंजीम हिज़्बुल्लाह ने ड्रोन की मदद से इस्राएली फ़ौजियों के करीब हमला किया, जिसकी वीडियो भी मंजर आम पर आ गई। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि जनूबी लेबनान के इलाके तैयबा में हिज़्बुल्लाह ने ड्रोन से इस्राएली फ़ौजियों के करीब हमला किया। वीडियो में देखा जा सकता है कि हमला उस वक्त किया गया जब इस्राएली फ़ौज जख्मी अहलकारों को मुंतकिल कर रही थी। इस दौरान फ़ौजियों को ड्रोन पर फायरिंग करते हुए भी देखा गया। ड्रोन जमीन पर गिरने के बाद जोरदार धमाके से फट गया, जबकि इस्राएली फौजियों को ड्रोन करीब आते वक्त भागते हुए भी देखा गया है।